अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो आई वुड से दैट ओवरऑल परसेंटाइल इंप्रूव होगा आपका, बिकॉज नॉट एवरी मॉक हैज अ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कैट 24 से स्टार्ट करो, 3 स्लॉट हैं, 3 पेपर्स हैं, उनको देखो। फिर कैट 23 पे आओ, 3 स्लॉट, कैट 22 3 स्लॉट, एंड सो ऑन, रिवर्स ऑर्डर में मूव करना शुरू करो। इन नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखो, रीजन आउट करो, and make sure at the end of the analysis you have solved each and every question that you have left unattempted in the mock paper। इसके बाद एक और स्लाइड आएगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी इस सेशन की। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, a very big welcome to all of you once again on the YouTube channel of MBA Wala। I would say by far one of the best channels, one of the channels that is basically a one-stop solution for all of you, for all the requirements that you have for the preparation of MBA entrance examinations, including CAT and other management entrance exams like SNAP, Narsi Munji, ZAT, Maharashtra CET, any exam you name. We are helping, we are providing you with the best possible ways of handling these examinations, as well as how to prepare and basically carry forward your preparation. Now friends, in this session, like I am here in front of you once again, and I would call this session as like by far one of the most important sessions for all of you before CAT 2025. Friends, today we are going to have a look at how to analyze the mock. अब काफी टाइम हो गया है, like it's been more than a month. Lot of students have requested me and they are continuously requesting me to basically make a session, to basically record a session in which I can tell all the students in like how to basically analyze a mock paper, and you have been waiting for this session for a long period of time. Now on the same, like I would say at the same time, I have been suggesting to all the students कि भाई मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, ये मॉक देने से पहले कैसे बता दूं मैं। So I have been suggesting students to continuously keep writing the mock papers, right? So मॉक का एनालिसिस कैसे करना है ये तभी समझ में आएगा when you have taken at least 3 or 4 mock papers, which now I can say that yes, a lot of students have done this, right? So a lot of you have taken at least 3-4 mocks like during your preparation over the last few days, and yes, now you will be able to understand what is the best possible way of analyzing the mock, because you have already taken mocks, you have already gone through that situation, right? So friends, how to analyze a mock? Today we'll be doing a step-by-step understanding, step-by-step approach to score 99 plus percentile. Yes, if we will have an efficient way of analyzing our mistakes or whatever we have done in the past, we will be able to work on the errors that we have made, and hence will be able to make those improvements, those corrections that are required for the next upcoming examination. And if we'll keep on using this approach continuously till CAT 2025, till 30th of November 2025, अगर हम ये approach continuously use करते रहेंगे, continuously apply करते रहेंगे, then with every coming mock we will be able to improve our score, right? So overall score improve होगा। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो आई वुड से दैट ओवरऑल परसेंटाइल इंप्रूव होगा आपका, बिकॉज नॉट एवरी मॉक हैज अ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, right? So it might be possible that in the first mock you have scored higher as compared to your score in the second mock. It might be possible because of the level of difficulty, right? So we should not be running after the score, we should not be running after the marks, we should be running after the percentile that we will receive on the basis of our performance, on the basis of whatever marks we have scored, right? So today we'll be having a look at a proper way of analyzing each and everything, and we'll be taking it step by step. So कोई भी मॉक का एनालिसिस करने से पहले जैसे प्री रिक्विजिट है कि मॉक तो देना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही मॉक देने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू एफिशिएंटली राइट दैट मॉक एग्जामिनेशन, राइट? तो मॉक ऐसा नहीं है कि भाई सो के उठे जगे हो अभी एंड मॉक देना शुरू कर दिया, दिन में जब मन किया मॉक देना शुरू कर दिया।
खाली टाइम है मॉक देना शुरू कर दिया, अरे आज संडे है तो मॉक देना शुरू कर दिया, नहीं, ये चीज नहीं चलेगी, राइट? सो मॉक में वो जो 2 घंटे हैं, द 2 hours दैट यू स्पेंड व्हाइल यू आर राइटिंग अ मॉक, तो वो चीज एफिशिएंटली आप मॉक तभी लिख पाओगे जब मॉक से पहले आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, आपने अंडरस्टैंड किया है कंप्लीट पैटर्न को, आपने अंडरस्टैंड किया है पूरे के पूरे एग्जाम को, हर एक सेक्शन को, आपको पता है कि क्या सिलेबस है, आपको पता है कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर, लास्ट 2 years, लास्ट 3 years किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। तो ये सारी प्रिपरेशन के साथ अगर आप चलोगे सो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो जो स्टूडेंट्स इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर लेगा, और इस चीज के लिए ना टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। सुनने में लग रहा है कि हाँ भाई ये तो मतलब 6 महीने की चीज बता दी सर ने एक ही सेशन में, नहीं, इस चीज को करने के लिए 6 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऑलराइट, so you just have to be aware of your surroundings. So let's have a look at step by step approach with step number 1, that will be knowing the pattern of the exam, right? So I am hoping that all of you know the exact pattern of CAT examination. थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं लास्ट 5-6 years में, बट लास्ट 2 और 3 years के पैटर्न को अगर हम स्टडी करें, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कैट, नॉट स्नैप, नार्सी मुंजी, जैट और एमएचसीटी। हम आज कैट के लिए डिस्कशन करेंगे। सो कैट में टाइम लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, सो टोटल 120 मिनट्स आर गिवन। जल्दी से गो थ्रू करते हैं। देन सेक्शनल टाइम लिमिट की बात करें तो 40 मिनट्स फॉर VARC, 40 minutes for DILR and 40 minutes for quant in this sequence. All right. Now number of questions की बात करें तो number of questions definitely last 2-3 years में थोड़ा सा fluctuating रहा है, but on an average की अगर हम बात करें तो verbal RC 24 questions, then DILR 22 questions, right? Now 22 questions, 24 questions ये किस तरीके से डिवाइडेड है ये पता होना चाहिए। VARC 24 questions है, how many reading comprehensions were asked in the last few years, how many questions were there on para jumbles, number of questions on sentence correction, sentence completion and so on so forth। ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो भाई मॉक देना स्टार्ट करो। So that's why I told you that prerequisite, सबसे पहले ये सेशन उन्हीं को देखना चाहिए जिन्होंने आज तक एटलीस्ट 4 मॉक्स दे दिए हैं। अगर 4 मॉक नहीं दिए हैं तो अभी ही एग्जिट कर जाओ इस सेशन से। नेक्स्ट 8-9 डेज में 4 मॉक्स अटेम्प्ट करो या फिर अपना टारगेट कंप्लीट करो 4 मॉक्स का, एंड देन हैव अ लुक एट दिस सेशन। थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगा ये सेशन, ठीक है? नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चंस, राइट? सो रेंज ये डिफरेंट हो सकता है। कैट 2025 में आपको डिफरेंट नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट ये मैंने लास्ट फ्यू इयर्स के पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये लिख दिया है। अब मार्किंग स्कीम की बात करें, सो +3 फॉर करेक्ट, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू विल गिव फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट 0 negative marking, no negative marking for theta questions. Unattempted questions will not give you anything, will not take away anything from you, right? Fine. So marking scheme में यहां पे पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग दोनों चीजें आ गई। और नेगेटिव मार्किंग का खासी ध्यान रखना पड़ेगा। नार्सी मुंजी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट? कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है, +3 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग। नाउ नेगेटिव मार्किंग विल टेक अवे 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड, राइट? सो हमें फ्लूक्स नहीं मारने हैं, वट एवर बी द केस, तुक्केबाजी नहीं करनी है। जो चीज, जिस चीज का आंसर पता है वो मार्क करना है, जिसका आंसर नहीं पता उसको खाली छोड़ना है। स्पेशली मॉक में हमें ये चीज प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज क्या हो सकता है कि अगर आपने मॉक में, लेट्स से क्वांट के सेक्शन में 10 क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट किए एंड 12 क्वेश्चंस पे आपने तुक्के मार दिए। सो अगर किसी मॉक में आपके तुक्के थोड़े ज्यादा करेक्ट हो गए, राइट, सो आपका स्कोर ऊपर हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट हैविंग अ फीलिंग दैट भाई मैं तो क्वांट में चैंपियन हो गया हूं। नेक्स्ट मॉक में अगर आपके तुक्के नहीं चले, आपका स्कोर नीचे गिर जाएगा, राइट? सो आज से आपको एक पहली चीज करनी है, किसी भी मॉक में, किसी भी सेक्शन में जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है, कैट में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है।
जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे दैट शुड बी जेन्युइन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ क्या लेवल है भाई, क्या औकात है मेरी अभी। ठीक है, सो अपनी औकात पता चलेगी, अपना लेवल पता चलेगा, जो बहुत जरूरी है इस टाइम पे जानना। राइट, आगे चलते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। लेट्स मूव, सॉरी, स्टेप नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आना चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां है, मेरी प्रिपरेशन यहां चल रही है, या फिर उल्टा लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां है और मैं पता नहीं क्या ही स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, सो ये चीज नहीं करना, मिसमैच नहीं होना चाहिए। राइट, सो आई कैन से दैट इफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज दिस, देन योर प्रिपरेशन लेवल शुड बी स्लाइटली अबव दैट। बहुत ज्यादा गैप ऊपर की तरफ भी नहीं होना चाहिए और नीचे तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आप ये सोचोगे भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये है और मैं प्रिपरेशन यहां तक कर लेता हूं, भाई कोई फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो जरूरत नहीं है। आप क्वांट में बहुत हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पढ़ रहे हो, एलआरडीआई में बहुत हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पढ़ रहे हो, ये वाला टाइम सेव करके वर्बल आरसी की प्रैक्टिस कर लो ना, ज्यादा फायदा होगा। राइट, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां है तो मेरी प्रिपरेशन यहां पे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए एंड दिस इज हाउ आई शुड बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो बहुत सारी बुक्स मिलती है मार्केट में जहां पे अब मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, बट जहां पे एक एक्सरसाइज ठीक है डिसेंट इनफ क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, दूसरी एक्सरसाइज डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कैट, थर्ड एक्सरसाइज में बहुत हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी चला जाता है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द करेक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सो वी शुड बी लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज आवर रेफरेंस। Now, previous year papers 1 year 2 year से काम नहीं चलेगा। Also, you don't have to go as far as 20 years back because तब तो पैटर्न ही डिफरेंट था, टाइम लिमिट डिफरेंट थी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट आते थे। So, to correctly gauge or understand the level of difficulty, you can go for last 8 years of papers. ठीक है, 2019 और उससे पहले पैटर्न डिफरेंट था। राइट, 1 आवर के 3 सेक्शंस होते थे, 3 आवर्स का कैट का पेपर होता था। बट अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो इतना कोई मेजर चेंज नहीं आया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पैटर्न आफ्टर कोविड। ठीक है, तो लास्ट 8-9 साल के पेपर आप कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हो तो रिवर्स सीक्वेंस में जाओ। कैट 24 से स्टार्ट करो, 3 स्लॉट हैं, 3 पेपर्स हैं, उनको देखो। फिर कैट 23 पे आओ, 3 स्लॉट, कैट 22 3 स्लॉट, एंड सो ऑन, रिवर्स ऑर्डर में मूव करना शुरू करो। राइट, सो टेक रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। नेक्स्ट इज डू नॉट वेट टू अटेम्प्ट मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने का वेट मत करो कि भाई बहुत सारे लोग तो सोचते हैं ना अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक में तो बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, क्या शक्ल दिखाऊंगा घर वालों को, मॉक में गंदे मार्क्स आए तो कैट में आईएम्स में एडमिशन नहीं होगा। नहीं यार, घर वाले कोई नहीं पूछ रहे आपके मॉक्स के मार्क्स, और मॉक की परफॉर्मेंस विल नॉट रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कैट, बल्कि मॉक अभी देना शुरू करोगे तो पता चलेगा कहां पे इंप्रूवमेंट करनी है एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स और कैट का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एंड मॉक में अगर गंदे मार्क्स आए तो ऐसा नहीं है कि आईएम रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सो मॉक देना शुरू कर दो अभी की अभी, अगर स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अब मॉक में क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज लिस्ट करने हैं। तो मॉक देने से पहले, ये मॉक देने से पहले की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज की एक लिस्ट बना लो। राइट, सो दीज आर माई स्ट्रॉन्ग एरियाज, दीज आर माई वीक एरियाज, बीच में है एवरेज एरियाज है तो एवरेज कर लो, और ज्यादा सेपरेशन मत करो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करो कि वीक एरियाज, देन बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मीडियोकर, बिटवीन मीडियोकर एंड स्ट्रॉन्ग, नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा आप 3 लिस्ट बना सकते हो, प्रेफरेबली 2 ही लिस्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। ऑल्सो लिस्ट द इंपॉर्टेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कैसे पता चलेगा? सो एलआरडीआई में लास्ट 5-6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट। सो कैट में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता, इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस नहीं आते। राइट, ठीक है, डायरेक्शन सेंसेस, ब्लड रिलेशंस, ये सब नहीं पूछा जाता। क्लॉक्स, कैलेंडर्स बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। क्यूब के क्वेश्चंस यस आए हैं पीरियोडिकली, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आया था,
बट अभी नहीं पूछा जा रहा, राइट? सो दैट मीन्स जो चीज आज तक नहीं पूछी गई वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो आज से 10 साल में 2-3 बार पूछी गई है वो लेस इंपॉर्टेंट है, और जो आज से पिछले 10 साल में, 8 साल में, 6 साल में बार बार पूछी गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस नहीं आए हैं लास्ट 4-5 इयर्स में, राइट? सो सर्कुलर अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट्स पूछते ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिक्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम तो लास्ट ईयर ही आया था, राइट? तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लिस्ट द इंपॉर्टेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, एंड भाई सिर्फ लिस्ट मत करो, इन पे वर्क करना शुरू करो। स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल गए, खुश मत हो। वीक एरियाज परेशान होना शुरू करो, चिंता करनी शुरू करो, वीक एरियाज पे वर्क करना शुरू करो। ऑलराइट, फाइन। सो दिस इज माय स्टेप नंबर 2 टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस, टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ मॉक। ठीक है, अगेन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तक ये सब चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके होंगे, मैं बस रीआइटरेट कर रहा हूं जिसने नहीं किया उसके लिए। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3 बिफोर वी गो टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप, दैट इज द एनालिसिस। और एनालिसिस कैसे करना है वो हम देखेंगे। एंटरिंग द टेस्ट सीरीज, सो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड फॉलो इट। फॉलो करना जरूरी है, शेड्यूल दुनिया बना लेती है, फॉलो कुछ लोग करते हैं। ठीक है, सो मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। आज मॉक दिया, राइट? तो प्रॉपर गैप होना चाहिए बिटवीन 2 मॉक्स। ओके, सो 3-4 डेज का गैप होना चाहिए कम से कम, बिकॉज 3-4 दिन तो लगेंगे ना एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, इन सब चीजों को करने के लिए। ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई 5 दिन खाना नहीं खाया, आज ही मैं अगले पिछले 5 दिन का खाना खाऊंगा, नहीं। सो ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में भी नहीं होता एंड यहां पे भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो देयर शुड बी गुड अमाउंट ऑफ गैप। अब इस पीरियड ऑफ टाइम में 3 या 4 दिन का गैप इनफ है बिटवीन एनी 2 मॉक्स। ऑलराइट, ओके, नाउ टेक अ मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक अ मॉक एट द फिक्स्ड टाइम स्लॉट इफ यू नो द टाइम स्लॉट ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम। अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बट एडमिट कार्ड आ जाएंगे नवंबर फर्स्ट वीक में, राइट? तो जिस भी दिन एडमिट कार्ड आ गया, आपको पता लग गया आपका स्लॉट क्या है कैट का, एग्जैक्टली उसी स्लॉट में आपको अपना मॉक अटेम्प्ट करना है। ये भूलना मत, राइट? ये बहुत इट्स ज्ञान फ्रॉम योर गुरु, ठीक है ना? सो मैं बता रहा हूं, ये जिसने फॉलो किया है, 1 महीने में हमारी बॉडी क्लॉक चेंज होने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली। सो अगर आपको आदत है, आपको मॉर्निंग स्लॉट आ गया कैट का और आपको आदत है उस टाइम पे सोते रहने की, यू आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, सो ऑन द डे ऑफ कैट आपकी बॉडी क्लॉक धोखा दे जाएगी, आपको साथ नहीं देगी। ठीक है ना? सो दिमाग और शरीर दोनों ही हमारे फेवरेबल कंडीशन में होने चाहिए उस टाइम के हिसाब से, राइट? सो टेक द मॉक एट द फिक्स्ड टाइम स्लॉट, ठीक है? एंड प्रेफरेबली जिस दिन एडमिट कार्ड हाथ में आ जाए, टाइम स्लॉट पता लग जाएगा, तो सेम टाइम स्लॉट में आपको अपना मॉक देना है, ठीक है? जो आपका कैट का स्लॉट होगा। सो स्टेप नंबर 3 डन, ठीक है? प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगेन इस चीज में, राइट? स्टेप नंबर 4, द फाइनल स्टेप बिफोर वी स्टार्ट विद द एनालिसिस। जस्ट बिफोर राइटिंग द मॉक पेपर करना क्या है? आज मैंने डिसाइड किया मॉक पेपर करना है, तो उस मॉक के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आंख बंद करके, दिमाग बंद करके मॉक स्टार्ट नहीं करना, राइट? ठीक है? सो मेरे जो वर्ड्स हैं अभी वो बहुत अजीब लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, इन चीजों को मान लोगे ना तो बहुत ही फायदा होगा, ठीक है? सो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमें प्लान करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी अभी पता चलेगा, ठीक है? 2 मिनट बाद पता चलना शुरू होगा। सेट दी सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के लैपटॉप पे पैर फैला के मॉक दे रहे हो, नहीं यार। थोड़ा सा प्रॉपर पोस्टर, टेबल एंड चेयर को यूज करो। लैपटॉप टेबल पे रखो, डेस्कटॉप टेबल पे रखो, फोन पे तो मॉक बिल्कुल ही मत दो, ठीक है? सो ये चीजें ध्यान रखनी है। सराउंडिंग्स का मतलब सिर्फ आसपास की हवा शुद्ध होनी चाहिए ये नहीं है। सराउंडिंग मींस थोड़ी शांति होनी चाहिए आसपास, ठीक है? एनवायरमेंट होना चाहिए ऐसा, रूम में और कोई ना हो तो अच्छा है, आप अकेले होने चाहिए, ठीक है? सेकेंडली टेबल चेयर, बेड पे फैल के मॉक नहीं देना, ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के नहीं देना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के दे सकते हो, प्रॉपर टेबल चेयर सेटअप होना चाहिए एंड मॉक देना है। एंड मॉक देने से पहले
एक और सराउंडिंग्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, रफ शीट्स। सो रफ शीट्स 7-8 रफ शीट अपने पास रखो। ऐसा नहीं है कि वर्बल आरसी सेक्शन खत्म हुआ, एलआरडीआई सेक्शन स्टार्ट हुआ, अब शीट्स की रिक्वायरमेंट आई, अब आप भाग रहे हो शीट्स लेने के लिए। ठीक है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इट शोज योर सीरियसनेस, इट शोज योर परफॉर्मेंस, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस, इट शोज हाउ प्रिपेयर्ड यू आर फॉर मॉक एग्जाम। ठीक है, सो सराउंडिंग सेट कर ली। अब सराउंडिंग सेट करने के बाद एक टारगेट स्कोर सेट करो, ओवरऑल एज वेल एज सेक्शनल। अभी बताऊंगा कैसे करना है ये चीज। ठीक है, इस स्टेप पे आएंगे थोड़ी देर बाद। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। तो यहां पे जो स्ट्रैटेजी बनाई थी ना, ठीक है, इसको वर्क करना, इसके अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश कर। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी बना ली, एग्जाम स्टार्ट होते ही भूल गए स्ट्रैटेजी। कैट में होता है ये बहुत लोगों के साथ। ठीक है, आधी से ज्यादा लोग आके मेरे को बताते हैं सर स्ट्रैटेजी के साथ गए थे, बट कैट जैसे ही स्टार्ट हुआ स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई। ठीक है, तो ये चीज अगर मॉक्स में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तभी कैट में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक्स में अप्लाई कोई करते नहीं है स्ट्रैटेजी, तो इसीलिए जो हाल मॉक में होता है वही हाल कैट में होगा। राइट, क्यों कुछ अलग होगा? राइट, जो चीज जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उसी चीज को तो आगे कंटिन्यू करोगे। तो स्ट्रैटेजी आज भूल जाओगे शायद मॉक में लगाना, नेक्स्ट मॉक में फिर ध्यान करने की कोशिश करो। राइट, सो कीप टैपिंग योरसेल्फ कि यार स्ट्रैटेजी तूने यूज नहीं की है, स्ट्रैटेजी यूज कर। एक पेपर, छोटे से पेपर पे लिख दो स्ट्रैटेजी और अपनी स्क्रीन के ऊपर चिपका दो उसे, याद रहेगा। सामने है ना स्ट्रैटेजी लिखा हुआ, याद रहेगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज स्टेप नंबर 4। नाउ लेट्स एंटर टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आफ्टर द मॉक एनालिसिस। अब एनालिसिस करना क्या है, इस पे हम टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा खासा। इसके बाद एक और स्लाइड आएगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी इस सेशन की, जो आपको अगले 45 डेज और जितने भी दिन तक ये अपना मॉक एनालिसिस वगैरह इस सेशन के बाद आप कर रहे हो, वो वाली शीट हर मॉक से पहले और हर मॉक के बाद यूजफुल होगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 मिनट की बस। ठीक है, एंड ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले देखते हैं कि भाई एनालिसिस कैसे करना है मॉक का। ठीक है, नाउ वंस आई हैव अटेम्प्टेड अ मॉक पेपर, राइट, सो एक सेक्शन, कोई भी सेक्शन पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट होल्ड ऑफ एलआरडीआई सेक्शन। पकड़ लेते हैं एलआरडीआई सेक्शन को। सो एलआरडीआई सेक्शन में लेट्स से मैंने मॉक अटेम्प्ट किया एंड देयर वर 5 सेट्स। ठीक है, देयर वर 5 सेट। 5 में से मैंने 2 सेट सॉल्व कर दिए, थर्ड सेट में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, फोर्थ एंड फिफ्थ सेट छूट गए। सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, तो 2 सेट अटेम्प्ट किए, आधा सेट यहां पे अटेम्प्ट किया एंड 2 सेट एकदम खाली छोड़ दिए, तो 2.5 सेट अटेम्प्ट किए, 2.5 सेट अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, नाउ अगेन, अब जो अटेम्प्ट किया है, जो नहीं अटेम्प्ट किया उसका तो अभी कुछ कर नहीं सकते, मॉक तो चला गया। तो जो अटेम्प्ट किया है, अब वहां पे कुछ क्वेश्चन सही हो गए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। सो आफ्टर एवरी मॉक यू विल हैव 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, नॉट अटेम्प्टेड एंड अटेम्प्टेड करेक्टली। सीक्वेंस मैंने ना कुछ उल्टी लिखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करेक्टली अटेम्प्ट किए ना उनको देख के खुश होते हैं, फिर जो हमने गलत क्वेश्चन किए हैं हम उनको देख के उदास होते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट इवन लुक एट द क्वेश्चंस जो उन्होंने अटेम्प्ट किए ही नहीं। राइट, सो these questions, all 3 types of questions needs to be visited after mock paper during the analysis. अब उनका करना क्या है, let's have a look at it. तो सबसे पहले मैं देखूंगा the questions which I have attempted incorrectly, गलत अटेम्प्ट किए हैं। That means मैं घुसा उसमें, 2 मिनट 3 मिनट इन्वेस्ट किए, उसके बावजूद मैंने उसको गलत कर दिया। तो मैंने क्या किया है, 4 मार्क्स लूज किए हैं। मैंने टाइम इन्वेस्ट किया तो 3 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे ना, करेक्ट होना चाहिए था, तो 3 मार्क्स मिले नहीं और -1 मिल गया। दैट मींस आई हैव लॉस्ट 4 मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइम भी गया, मार्क्स भी गए। ओके, तो सबसे क्रिटिकल ये क्वेश्चन है। नाउ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, सो रीजन आउट कि मैंने क्यों इनको गलत अटेम्प्ट किया है। राइट, अब रीजन क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 कैन बी, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया है कैलकुलेशन।
25 इंटू 28 करना था, मैंने 25 इंटू 38 कर दिया, या बेसिक मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में. सो वन कैन बी अ सिली एरर. मैंने सब कुछ सही किया, कंसेप्ट सही अप्लाई किया, एवरीथिंग वाज करेक्ट, बस एक जगह पे मैंने सिली मिस्टेक कर दी, राइट, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस एरर हैपेंड. सो नंबर 1 इज सिली मिस्टेक. राइट. नंबर 2 कैन बी मैंने फॉर्मूला ही गलत यूज कर लिया. राइट. ऐसा नहीं है गलती से गलत यूज कर दिया, मेरे को गलत ही याद, या फिर कंसेप्ट मैंने उल्टा अप्लाई कर दिया, मेरे को गलत ही पता. ओके. सो कंसेप्ट और फॉर्मूला applied wrong. Okay, so this can be the second type of mistake. The third type of mistake जो कभी नहीं करनी है, ठीक है, मैंने फ्लूक मार दिया. ठीक है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन देखा, उसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था, मुझे लगा कि हाँ भाई 3 में से ये वाला सही करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो मैंने मार्क कर दिया. सो बिकॉज ऑफ फ्लूक. ओके, तो ये तो एलिमिनेट कर ही देना है, फ्लूक तो मैंने बता ही दिया कि नहीं मारने हैं. नाउ लुक एट दीज टू. इसमें अगर ये वाली प्रॉब्लम है, हाँ, अब इसको रेक्टिफाई किया कैसे जा सकता है. तो देयर आर स्टूडेंट्स हु माइट बी एक्सपीरियंसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक पर्टिकुलर मिस्टेक हम बार बार करते जा रहे हैं. ये मिस्टेक क्यों हो रही है? बिकॉज हम थोड़े से नर्वस हैं एग्जाम के टाइम पे, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी करने के चक्कर में हम मिस्टेक कर रहे हैं. सो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कैलकुलेशंस हम जहां पे बार बार मिस्टेक कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है क्वांट पे, और वहां पे मैं एक कॉमन मिस्टेक करता जा रहा हूं बार बार. ठीक है, सो ये मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है, फॉर्मूला पता है, बट मैं ये बार बार एरर कर रहा हूं. मुझसे x की वैल्यू पूछी गई है, मैंने x+2 की वैल्यू मार्क कर दी, या फिर x+2 की वैल्यू पूछी गई है, मैंने x की वैल्यू मार्क कर दी. ये बहुत बड़ा सिली एरर है. ठीक है, तो सिली एरर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी कॉन्शियस कि हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं. तो अगर मैं बार बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, तो मेरे सामने दोबारा से अगर इस टाइप की कैलकुलेशन आती है, थम जा, रुक जा, वहां पे 5 सेकेंड का पॉज लो. ठीक है, एंड उस कैलकुलेशन को थोड़ा स्लोली अटेम्प्ट करो. योर माइंड इज कॉन्शियस. जिनका माइंड कॉन्शियस होगा वही अपने एरर्स को चेंज कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे. अगर आप आंख बंद करके पेपर को करते रहोगे अनकॉन्शियस माइंड से, कुछ फायदा नहीं होगा. ठीक है, राइट. सो कॉन्शियसली अपनी मिस्टेक, जैसे ही उस टाइप की चीज दोबारा से आती है आपके सामने, आप ध्यान से रुक जाओ. ऐसा है ना, गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया, देखा नहीं, गाड़ी उछल गई. एक बार उछल गई, 2 बार उछल गई, भाई अगर बार बार उछल रही है ना, तो मेरे में ही प्रॉब्लम है, स्पीड ब्रेकर या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये चीज बार बार नहीं करना, बार बार नहीं उछलना स्पीड ब्रेकर पे. रुक जाओ, स्पीड ब्रेकर दिखे, रुक जाओ, धीरे से गाड़ी को निकालो. सो धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व. करेक्ट. ठीक है, देन एक और टाइप का सिली एरर जो मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन में 2x की वैल्यू निकालनी है, x+2 की वैल्यू पूछी हुई है, एज ऑफ फादर पूछी हुई है. हमने क्या किया, x एज ऑफ सन अज्यूम किया था, एज ऑफ सन निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, 30 आ गई x की वैल्यू, हम खुश हो गए, कोई गलती नहीं है. एंड ऑप्शन में 30 ऑप्शन देखा और उसको मार्क कर दिया, विदाउट नोइंग कि भाई मुझसे x नहीं पूछा गया था, मुझसे x+20 पूछा गया था, फादर की एज पूछी गई थी. राइट. ठीक है, सो क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए ये चीज कर सकते हो. x की वैल्यू जैसे ही आती है, अगेन रुक जाओ, थम जाओ. ठीक है, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड क्या पूछा गया है, एंड देन मार्क योर आंसर. बहुत फायदा होगा इससे. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक, कंसेप्चुअल एरर, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया. आप खुद ही समझदार हो, करना क्या चाहिए पता है आपको. ठीक है ना. सो अगर मैं बार बार एक फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहा हूं, इनफाइनाइट जीपी का गलत फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, मिसलिनियस सीरीज का कोई गलत फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, कंसेप्ट गलत अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक बार गलती हो गई ना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एनालिसिस में इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करूंगा. I'll read that concept and solve at least 5 questions on that concept. That's it.
ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई ये मैंने गलती कर दी, अब नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप दोबारा करोगे गलती। सो मेक श्योर अगले मॉक से पहले प्रैक्टिस में 2-3 बार गलती कर दो ना। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे दोबारा से कंसेप्ट को रीड करके, पहले में गलती, दूसरे में गलती, थर्ड में गलती डेफिनेटली नहीं करोगे, फोर्थ में तो एकदम फ्लो में आ जाओगे, और फिफ्थ क्वेश्चन टाइम सेव करके एफिशिएंटली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो गलती एक्नॉलेज नहीं करनी, गलती ढूंढनी है एंड देन उसके ऊपर वर्क करना है। मिनिमम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उस गलती पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विच आर नॉट अटेम्प्टेड, जो जनरली कोई देखता ही नहीं है। इस क्वेश्चन को पकड़ो, राइट, और यहां से सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो गलत अटेम्प्ट किए ये तो कुछ ही क्वेश्चंस होंगे ना, 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, इनसे इतना फायदा नहीं होगा जितना इनसे फायदा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर नॉट अटेम्प्टेड, इनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है। इस मोमेंट पे तो सबसे ज्यादा होगी। अब इन क्वेश्चन को पकड़ो, एक एक क्वेश्चन को खोल खोल के देखो कि हाँ भाई क्यों, भाई तेरे में ऐसा क्या था जो मैंने तेरे को अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, सो रीजन इट आउट। वॉज इट लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, दिस माइट बी द रीजन कि भाई मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो मेरी क्या गलती है यार, मुझे पता ही नहीं वो क्वेश्चन कैसा था, राइट। अनदर रीजन कैन बी, मैं इस क्वेश्चन में एंटर हुआ एंड मैंने देखा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो रिस्पेक्टफुली मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा। क्लैपिंग, गुड, बहुत अच्छा डिसीजन था। अनदर इज, मैं इस क्वेश्चन में घुसा, टाइम बर्बाद किया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बर्बाद किए एंड उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। सेट में घुसा, अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कल ही, तो शी सेड कि सर मैं 15 मिनट बाद एक सेट को छोड़ देती हूं। मैंने बोला अरे यार 15 मिनट इतना नहीं करना चाहिए, एलआरडीआई में सेट में थ्रेशोल्ड 5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट में अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में, बाहर निकल जाओ उस सेट से। ठीक है, क्वांट के क्वेश्चन में वो थ्रेशोल्ड 1 या 1.5 मिनट का हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हो, पहले आरसी देखते हो क्या टॉपिक है, राइट। सो एक आधा मिनट स्पेंड करते हो, 3-4 लाइन पढ़ते हो, उससे आइडिया हो जाता है, 15 सेकेंड में आइडिया हो जाता है, राइट। तो ये चीज पहले करनी है एंड डिसाइड करना है कि भाई करना है कंटिन्यू या फिर नहीं। ओके, सो यहां पे मैं इस क्वेश्चन में घुसा, मैंने टाइम बर्बाद किया, सॉल्व किया, 10 मिनट लगा दिए एलआरडीआई के सेट में, उसके बाद मैं बाहर निकल। ठीक है, सो दैट मींस मुझे एक सेट अट्रैक्टिव लगा, मेरा सिलेक्शन गलत था। ओके, सो रीजन आउट करना है एंड वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी है, राइट। ओके, देन अनदर क्वेश्चन कैन बी कि भाई इजी क्वेश्चन था, टाइम नहीं मिला और मैंने छोड़ दिया, राइट। सो इन नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखो, रीजन आउट करो एंड मेक श्योर एट द एंड ऑफ द एनालिसिस you have solved each and every question that you have left unattempted in the mock paper. क्वांट का क्वेश्चन है, एलआरडीआई का सेट है, आरसी पैसेज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको सॉल्व करना है एनालिसिस के टाइम पे सारे के सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, राइट। परफेक्ट, टेकन केयर ऑफ। नाउ this is a very very common practice not to look at these type of questions. वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि भाई हमने तो सही किया है ना, तो सही किया है तो बस सही, यही तो करना था। नहीं, एनालिसिस में ये जानना जरूरी है कि मैंने सही किया है तो क्या मैंने सही कंसेप्ट यूज करके सही आंसर निकाला है, नंबर 1। सो हैव आई यूज्ड द राइट कंसेप्ट टू गेट द राइट आंसर, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर इंस्टेंसेस में होता है कि हाँ भाई मैंने गलती से ये वाला आंसर निकाल दिया, मैंने गलत मेथड यूज करके निकाल दिया, तो अपने आप को करेक्ट करो, राइट। नंबर 2, मैंने आंसर सही निकाला बट मैंने क्वांट के इस क्वेश्चन में 6 मिनट में आंसर सही निकाला। एफिशिएंट मेथड को यूज करके 2 मिनट में भी आंसर निकल सकता था, तो मैंने 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। अब क्या किया है मैंने, 4 मिनट एक्स्ट्रा यहां पे लगाए हैं सही क्वेश्चन के लिए, ये 4 मिनट बचा के मैं इन क्वेश्चंस को टैप कर सकता था। यहां पे मैंने बहुत इजी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया, मैं उनको विजिट भी नहीं कर पाया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है उन क्वेश्चंस पे, जिनके लिए मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि भाई मैंने सही कर दिया है, बल्कि मैंने क्या किया है, वहां पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, बिकॉज ऑफ विच मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ड्रॉप हो गए। सो नाउ
फाइंड आउट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है टू लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर अटेम्प्टेड करेक्टली। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द एंटायर एनालिसिस ऑफ द मॉक। नाउ एनालिसिस करने के बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज पता ही लग जाएंगे, अपनी गलतियां पता लग जाएंगी। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मॉक का एनालिसिस खत्म हुआ, इमीडिएटली टेक फ्यू आवर्स, टेक 1 day, take 2 days and work on your weak areas and अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सो अब क्या करना है, आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आपको 80% टाइम स्पेंड करना है अपने वीक एरियाज में एंड 20% टाइम स्पेंड करना जरूरी है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में। राइट, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी अच्छे से, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग फॉर द डे which is going to be the most useful thing for all of you as a part of this session and as a part of your next 45 days. ठीक है, now have a look at this. देख लो क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या रोज हैं। Now this should be done without fail before and after every mock. हर एक मॉक से पहले और हर एक मॉक के इमीडिएट बाद ये टेबल बनानी है। टेबल एक बार बना लो, पेपर पेंसिल पे तो पेपर पेन यूज करके तो मत ही बनाओ, अपने सिस्टम पे बनाओ इसको और बार बार कट कॉपी पेस्ट करते रहो। मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 अलग अलग पेजेस पे सेम टेबल कॉपी कर दो। राइट, सो आज लेट्स से आज आपका जो स्टेटस है, आप इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुंच चुके हो कि आपने 5 मॉक दे दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, अपना जो भी लेटेस्ट मॉक दिया है एज रेफरेंस उसको ट्रीट करो एंड स्टार्ट फिलिंग द टेबल बिफोर द मॉक, बिफोर द नेक्स्ट मॉक। तो 5th मॉक आपने जो भी लास्ट मॉक दिया है, आई एम कंसीडरिंग कि वो 5वां मॉक था, मॉक नंबर 5 आपका लास्ट मॉक था, आपने वो दिया है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ पोर्शन यहां पे फिल करेंगे। ठीक है, बिफोर वी गो टू नेक्स्ट मॉक, मॉक नंबर 6। तो अब क्या क्या फिल करना है, सेक्शन 1, 2, 3 मैक्सिमम स्कोर सेक्शन 1 में कितना था, वर्बल में अगर 24 क्वेश्चन आए थे, 24 into 3 72। LRDI सेक्शन 2 अगर 22 क्वेश्चंस थे तो 66। सेक्शन 3 क्वांट अगर 22 क्वेश्चंस थे तो 66। इनको ऐड करके यहां पे फिल कर दो। आई होप ऐड तो कर ही लोगे। ठीक है, योर करंट स्कोर, सो योर स्कोर फ्रॉम द प्रीवियस मॉक, सो जो भी लास्ट मॉक दिया है उसमें आपका स्कोर क्या था। सो लेट्स से इन वर्बल आरसी यू हैव स्कोर्ड 20, इन LRDI you have scored 22 and in quant you have scored 28। ये आपके स्कोर्स थे एंड ओवरऑल स्कोर कितना हो गया 70। चलो ये मैं लिखता जाता हूं, डन, ये आपने फिल कर लिया। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस मॉक यू विल बी फिलिंग दिस। Now before the mock, before you start the mock, this needs to be filled again. My target score for the next mock. Next mock के लिए मेरा target score क्या होगा? So if I have scored 20 marks here, so mind में एक target set करो. That target should be at least minimum 5 to 10% more than the previous score that you have achieved. ऐसा नहीं है कि 20 स्कोर किया तो टारगेट 40 कर लिया, प्रैक्टिकली टारगेट सेट करना है। ठीक है, सो यू नो योर परफॉर्मेंस, यू नो योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल सेट अ टारगेट फॉर द नेक्स्ट मॉक। तो लेट्स से मैंने टारगेट सेट किया 23 मार्क्स का फॉर वर्बल, 24 मार्क्स का फॉर LRDI एंड 32 मार्क्स का फॉर क्वांट। जरूरी नहीं है सब में +3 कर दो, रैंडमली नहीं लिखना है। आपने एनालिसिस कर लिया है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता है, नेक्स्ट टारगेट सेट करना है। सो टोटल कितना हो गया 70 एंड 77 79 +3 यहां पे, +2 यहां पे, +4 यहां पे। ऑलराइट, 79 इज माय टारगेट स्कोर। अब इस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए मुझे कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वो सेट कर लो। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आप यहां पे सेट कर रहे हो, यू शुड नॉट बी रिजिड अबाउट दैट। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 23 का स्कोर लाने के लिए
सबसे पहले तो 8 अटेम्प्ट्स, सो 8 इंटू 3 24 होता है, तो 23 आ जाएगा। नहीं, अपनी प्रीवियस मॉक में आप अपनी एक्यूरेसी भी देखो। तो लेट्स से अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिए हैं, तो यहां पे 8 की जगह मेरा टारगेट होगा 10। अगर मैं 10 अटेम्प्ट करूंगा, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर दूंगा, तब मैं जाके अटकूंगा 23 पे। ठीक है ना, राइट? सो यू शुड बी अवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी बहुत ही खराब है, तो मुझे 12 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू गेट दिस स्कोर। बहुत ही वाहियात एक्यूरेसी है, तो 12 की जगह 14 करना पड़ेगा। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो 8 या 9 अटेम्प्ट करने पे भी मैं इस स्कोर को अचीव कर सकता हूं। सो लाइकवाइज राइट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नाउ मैंने एक चीज बोली थी, इस चीज के लिए रिजिड नहीं होना कि हाँ भाई मैंने तो यार 9 का टारगेट किया था, अब मैं 9 से ज्यादा नहीं करूंगा अटेम्प्ट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां पे थोड़ा सा लो हो, तो 9 की जगह आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, तो रिजिड नहीं होना। 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 9 से कम भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ मॉक, उसके बेसिस पे हम अटेम्प्ट करेंगे। डोंट रन आफ्टर द स्कोर, रन आफ्टर द परसेंटाइल स्कोर। ओके, सो ये चीज मैंने फिल कर दी, टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डन। I'll write the mock, and then after the mock is over, I'll fill this. Okay, my final score, populate this column after the test completion. Test complete हो जाए, टारगेट सेट किया था 23, लेट्स से 21 पे रह गया। टारगेट सेट किया था 24, लेट्स से 25 आ गए। टारगेट सेट किया था 32, बट 32 नहीं हुआ, स्कोर और रिड्यूस हो गया 27। परेशान नहीं होना है, 27 यहां पे कम हो गए, तो अब ये इंडिकेशन है, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिमिलर है, आपको लगा सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो ये इंडिकेशन है कि भाई स्कोर ड्रॉप हुआ है। दैट मींस कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका एनालिसिस और अच्छे से करना पड़ेगा, राइट? आपको लगा कि मॉक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई हो गया, सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू। लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई हुआ, बट आपका स्कोर बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, राइट? स्टिल एनालिसिस के टाइम पे ये चीज प्रॉपरली देखो। अब ये वाली जो टेबल है, जैसा मैंने बोला, बार बार हर मॉक से पहले ये चीज फिल करनी है, मॉक के बाद सिर्फ एक छोटा सा कॉलम फिल करना है। देन ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट मॉक से पहले इस टेबल को दोबारा से ड्रॉ करो, दोबारा से कॉपी करनी है बस, दोबारा से फिल करो एंड सेट योर टारगेट फॉर योरसेल्फ। नाउ फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स इन द पास्ट, like I've been teaching this particular technique since so many years, more than 10 years, and the students who have worked on this particular thing, again मैं बोल रहा हूं, इस चीज को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। Now if you are working according to this, या फिर कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, टेबल कैसी भी हो, but if you are tracking your performance and giving yourself a target based on your previous performance, and then looking at if you have achieved the target or not, then my dear friends, certainly I'm telling you, you will be able to achieve that success which is required in CAT examination, right? So friends, on this note, I'll take a leave and will leave it on you if you are going to improve further in your performance till CAT 2025. All the very best.